Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Students, today we are going to start our next chapter. That is chapter number 6, and the name of this chapter is Trade and Commerce. But before start reading, I will tell you what is the meaning of trade, what is the meaning of commerce, and what is the big difference between these two words, trade and commerce. What is trade? Trade involves the transfer of goods or services from one person or entity to another, often in exchange for money, or the trade is basic economic concept involving the buying and selling of goods or services with the compensation paid by buyer to a seller, or exchange of goods or services between parties. And what is commerce? Commerce is the conduct of trade amongst the economic agents. Generally, the commerce refers to the exchange of goods, services, or something of the value between business or entities. For example, the social or intellectual exchanges amongst a group of friends. ट्रेडिंग में क्या होता है, जब हम ट्रेड करते हैं, व्हाट इज़ ट्रेड? ट्रेड में ये होता है कि एक पर्सन जो है वो किसी दूसरे पर्सन को अपनी कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है, और वो जब उसे बाय करता है तो वो उसे कैश देता है, ठीक है। लेकिन कॉमर्स में क्या होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर होती है, मैन्युफैक्चर होने के बाद कॉमर्स और ट्रेड में ये डिफरेंस है कि जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती है, मैन्युफैक्चर होने के बाद वो होल सेलर को सेल कर दी जाती है, ठीक है। अब वो होल सेलर उस प्रोडक्ट को वहाँ से उठाता है लॉरीज़ और ट्रक्स वगैरह के ज़रिए उठा के अपने वेयर हाउसेस में लेकर आता है, तो ट्रांसपोर्ट यूज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर वो प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रही है तो उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट होती है, फिर वो प्रोडक्ट जो है वो शॉपकीपर्स को सेल होती है, फिर शॉपकीपर्स उस प्रोडक्ट को लेने के लिए वहाँ से अपनी डिफरेंट जो है वो अपनी ट्रक्स में, अपनी सुजुकियों में, अपनी गाड़ियों में लोड करके अपनी शॉप्स पे लेकर आते हैं, फिर उसके बाद वो सेल होती है कस्टमर को, ठीक है। इसको कहते हैं कॉमर्स। इस पूरी चेन को कहा जाता है कॉमर्स। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो व्हाट इज़ द two main examples of commerce, the barter system and the cash one. See, you can see in the diagram, in the picture, examples of commerce. Barter, what is the meaning of barter? Barter system is basically the exchanging of goods. यानी आप देख सकते हैं कि बार्टर सिस्टम मतलब ये कहलाता है कि एक दूसरे को कैश नहीं दिया जा रहा है, बल्कि अगर वो उनको मतलब सामने वाली चीज़ को कोई अशिया अपनी कोई गुड्स सेंड करे तो उसके बदले में कैश नहीं मिल रहा है, उसके बदले में भी उसे गुड्स मिल रही हैं। यानी आप ये वाली गुड्स लेंगे तो मैं आपको ये वाली गुड्स दूंगा, ठीक है। और जबकि दूसरी एग्जाम्पल कैश की सूरत में वो आप देख सकते हैं द पर्सन इज़ गिविंग द मनी टू ओन द कार, वो एक कार लेने के लिए वो उसको कैश दे रहा है, ठीक है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग। ओपन चैप्टर नंबर 31 and open page number 31, chapter 6, trade and commerce. Yes, a country's wealth is very much like that of an ordinary family. We work to earn wages. You people should have pencils in your hand to write the meaning of the difficult word, and you will underline the word wages. What is the meaning of wages? Wages means in Urdu you can say ujrat और मजदूरी और तनख्वाह, मतलब वेजेस कहा जाता है इनको। विच कैन बी स्पेंड ऑन हाउसेस, फर्नीचर्स, फूड, क्लॉथिंग, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट एंड सो ऑन। इफ़ वी स्पेंड लेस देन वी अर्न। द वर्ड अर्न मीन्स कमाना, ठीक है। We have money to save or to spend on holidays, new clothes and special treats, but if we spend more than we earn, we get into debt and have to borrow from a bank. The word underline, you will underline the word debt. Debt means कर्ज. And have to borrow, underline the word borrow means udhar from a bank or a money lender. Unfortunately, we have to pay back the money we have borrowed plus interest. You can underline the word interest as well. Now I will tell you what is the meaning of interest. Okay, first आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ। वो ये कह रहे हैं कि अगर वी वर्क टू अर्न वेजेस, हम काम करते हैं अपनी तनख्वाहें, अपनी उजरत हासिल करने के लिए, ओके, और हम वो खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं अपने हाउसेस में, अपने फर्नीचर्स में, फूड, क्लॉथिंग, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट में हम उसको खर्च करते हैं। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है, उसकी सैलरी जो है वो 10,000 है,
और वो 10,000 में से वो हर मंथ पे इतना खर्च करता है कि कभी 8,000 खर्च कर लेता है, कभी 9,000, कभी 5,000, कभी 6,000, यानी उसकी मंथली जो उसकी मंथली जो इनकम है, जो उसकी जो सैलरी है, उसमें से वो हर महीने कुछ ना कुछ वो सेविंग कर रहा है। तो वो जो सेव्ड उसके मनी होते हैं, वो वो पैसा अपने किसी भी चीज़ में लगा सकता है, ज़रूरत के वक्त वो किसी भी चीज़ में लगा सकता है। इसके अलावा वो उससे कोई इंटरटेनमेंट ट्रैवलिंग कर सकता है कि जनाब पैसे जमा कर करके उसने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग कर ली, वो ट्रैवल कर सकता है। लेकिन अगर इंसान की फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन की सैलरी ही 10,000 है और उसके अखराजात उससे इससे ज़्यादा हैं, 15,000 हैं या 12 या 13,000 उसके अखराजात हैं, तो उसके अब क्या है, उसकी इनकम जो है वो 10,000 वो इनफ नहीं होगी उसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए। अब उसको क्या करना होगा, अगर उसकी अखराजात 15,000 के हैं तो उसको 5,000 जो है वो बैंक से या मनी लेंडर से उसको बोरो करने पड़ेंगे, उधार लेने पड़ेंगे और फिर उसको वापस पे करने पड़ेंगे इंटरेस्ट की सूरत में। अब ये इंटरेस्ट क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन ने एक बैंक से एक अमाउंट ली, ठीक है। उसने क्या किया, उसने बोरो किया उनसे कि आप मुझे 20,000 रुपीज़ दे दें। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, ठीक है। 20,000 उसने रुपीज़ एक बैंक से लिए। बैंक ने उससे कहा ओके मैं आपको 20,000 रुपीज़ एक साथ देता हूँ, बट यू हैव टू पे मंथली। आपको मंथली पे करने पड़ेंगे 1,000, ठीक है। आप वो ही कह रहे हैं, आप मंथली मुझे 1,000 मंथली पे करें और 20 मंथ्स तक आप मुझे पूरी रकम अदा कर दें, ठीक है। लेकिन अब बैंक ने आपको 20,000 इकट्ठे दिए, तो अब वो आपको ये नहीं कहेगा कि आप जो है वो मुझे 1,000 मंथली करें। वो ये कहेगा 1,000 तो किस्त आपकी बनती है, लेकिन आप मुझे पे करेंगे 1,300। जो 300 रुपीज़ हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, ये 300 जो है वो उसके क्या हो जाएंगे, इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी 1,000 तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है और 300 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट कहलाएगा। इस तरह हर महीने जो 1,000 रुपीज़ करते करते 20 मंथ्स तक जो 20,000 होंगे उसमें हर महीने 300 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे। तो वो यूँ बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, यानी दे तो वो 20,000 रहा है, लेकिन वो जब वो मंथली उसको पे कर रहे हैं तो 300 रुपीज़ ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। बैंक के पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, तो ये 300 रुपीज़ है, ये इंटरेस्ट कहलाता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग। फॉर अ कंट्री द वेजेस आर कॉल्ड एक्सपोर्ट थिंग्स इट सेल्स ओवरसीज। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट कहलाता है बरामद करना, फ़रोख्त करना, कोई भी चीज़ को यानी इस एक्सपोर्ट कहलाता है किसी भी चीज़ को किसी दूसरे कंट्री में भेजना या बेचना, ठीक है। और इम्पोर्ट कहलाता है दरामद करना, किसी दूसरे कंट्री से ख़रीदना, ठीक है। अब ये कह रहे हैं फॉर अ कंट्री द वेजेस आर कॉल्ड एक्सपोर्ट, किसी मुल्क के लिए उजरत बरामद की जाती है। थिंग्स इट सेल्स ओवरसीज द कमोडिटीज़ वी बाय आर कॉल्ड इम्पोर्ट। अच्छा, ये वर्ड कमोडिटीज़ मीन्स कोई भी प्रोडक्ट्स कह लें, कोई भी शय, अशिया, गुड्स, ठीक है। वी बाय हम ख़रीदते हैं तो वो कहलाती है इम्पोर्ट, यानी दरामद करते हैं हम, ख़रीदते हैं, वो इम्पोर्ट कहलाती है, ठीक है। वी बाय फ्रॉम अदर कंट्रीज़, ठीक है। इफ़ अ कंट्री एक्सपोर्ट मोर देन इट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, बेचना, फ़रोख्त करना। अगर कोई कंट्री फ़रोख्त करता है मोर देन इट इम्पोर्ट्स, ख़रीदने लेने किसी दूसरे कंट्री से लेने से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट्स बाहर सेल करता है, बाहर बेचता है, इट हैज़ स्पेयर मनी टू बाय मोर इम्पोर्ट्स, उसके पास ज़्यादा अमाउंट आ जाएगी, ज़्यादा अमाउंट बच जाएगी, ठीक है। फॉर डेवलपमेंट सच एज रोड्स और टू प्रोवाइड मोर सोशल सर्विसेज सच एज वेलफेयर, मोर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स फॉर द पीपल, इफ हाउएवर इट बाइज मोर फ्रॉम ओवरसीज एंड इट सेल्स। वो ये कह रहा है कि उसके पास एक अमाउंट बच जाएगी और वो ये अमाउंट जो है वो डेवलपमेंट में यूज़ हो सकती है, जैसे कि रोड्स वगैरह को बिल्ड करना, रोड्स बनाने हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाने हैं या स्कूल्स वगैरह, सारी चीज़ों में हम वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, it has to borrow from other countries or international organizations such as the World Bank or other United Nations departments, but as its reserves of money are low, it will probably have to pay high interest rates. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी भी कंट्री से ओवरसीज़ जो भी है उसमें उससे हम ज़्यादा चीज़ें बाय करते हैं, इतनी हमारे पास इतना पैसा नहीं है जितना हम उनसे ख़रीद रहे हैं, तो हमें क्या करता है, हमें हमें क्या करना पड़ता है कि फिर हमारे कंट्री को जो है वो
पैसे उधार लेने पड़ते हैं वर्ल्ड बैंक के ज़रिए। वर्ल्ड बैंक और अनदर यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट्स वगैरह से हमें पैसे लेने पड़ते हैं, और फिर वो पैसे हमें इंटरेस्ट के सूरत में हमें वो पे करने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, एक साथ तो कोई भी बैंक आपको पैसे दे देगा, 20,000, 30,000, 40,000, जितने भी आप चाहते हैं वो आपको दे देगा। लेकिन जब आप उसको पे करने लगेंगे मंथली, तो फिर आपको उसके साथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसी तरह जब किसी कोई मुल्क वो ज़्यादा चीज़ें जो है वो इंपोर्ट करता है, ज़्यादा चीज़ें जो है वो बाज़ार से दूसरे कंट्रीज से मंगवाता है, तो क्या करता है, इतने उसके पास पैसे नहीं है, इतने वो मंगवा रहा है, तो उसको उधार लेना पड़ता है वर्ल्ड बैंक से। जब वो वर्ल्ड बैंक से उधार लेगा और जब वो पे करेगा, तो वो इंटरेस्ट के साथ वो पैसे पे करेगा। यूँ पे करते 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 पैसे बहुत बढ़ जाएंगे और मुल्क जो है वो मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। Now come to the next paragraph. As we have seen, the wealth of a country comes largely from its export. Some of these are agricultural products such as sugar, rice, wheat, and fruits, most of which are relatively low in value. Some exports such as iron and other metals ore are more valuable. Oil and natural gas, which are really minerals, are of course extremely valuable. But most valuable of all are manufactured products, machinery, motor vehicles, and electrical and electronic equipment, chemicals, clothing and textile, plastics, sports equipment, carpets, of much more. These are valuable because although the cost of the raw materials in them may not be very great, there is a great skill and a lot of expensive machineries involved in making them. As we have seen the wealth of a country, जैसा कि हम देखते हैं कि कंट्री की जो वेल्थ है, कंट्री की जो मतलब जो हमारे मुल्क में या किसी भी मुल्क में जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं, लार्जली फ्रॉम इट्स एक्सपोर्ट। वो जो चीज़ें सेल करता है, दूसरे कंट्री को बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, बरामद करता है, वहाँ से आते हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि शुगर, राइस, व्हीट, फ्रूट्स, लेकिन जो मोस्ट ऑफ विच आर रिलेटिवली लो इन वैल्यू। सम एक्सपोर्ट सच एज आयरन एंड अदर मेटल्स आर मोर वैल्यूएबल। लेकिन कुछ एक्सपोर्ट जो होते हैं जैसे ना आयरन और जो दूसरे मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ठीक है, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि ऑयल और नेचुरल गैस है, और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जो है वो हर कंट्री की ज़रूरत है, ऑयल, गैस और ये सब हर कंट्री की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली यूज़ ये होता ही है। तो जो कंट्री ऑयल, गैस वगैरह, पेट्रोल वगैरह ये ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, वो उस कंट्री के पास ज़्यादा पैसे आते हैं, वो कंट्री ज़्यादा डेवलप होती है, उनके पास ज़्यादा पैसा आता है, वो अपनी कंट्री पे ज़्यादा लगा सकते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सेट अगेंस्ट वन अनदर इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अ कंट्री विच सेल्स मोर देन इट बाइज, एक कंट्री जो सेल करता है मोर देन इट बाइज, ख़रीदने से ज़्यादा सेल करता है, वो कहलाता है इज सेड टू हैव अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसकी पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। ओके, अगर वो ज़्यादा क्या कहा है उन्होंने, अगर वो अ कंट्री विच सेल्स मोर देन इट बाइज इज सेड टू हैव अ पॉजिटिव बैलेंस। ये बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट बता रहे हैं। पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। पॉजिटिव ये होता है अगर कोई कंट्री ज़्यादा सेल करता है अपनी बाई से ज़्यादा, तो वो पॉजिटिव कहलाता है। लेकिन अगर कोई कंट्री ज़्यादा बाय करता है, सेल कम करता है, तो वो नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। ठीक है, इफ़ इट बाइज मोर देन इट्स सेल abroad, it is said to have a negative balance. Another important source of income for a country, especially Pakistan, is money sent home by people who work overseas. Hundreds of thousands of Pakistanis work abroad, especially in the oil industry in Saudi Arabia and the Gulf states, where wages are much higher than they are at home. In 2001, these expatriate expatriates sent home about 2 billion. अच्छा, द वर्ड एक्सपेट्रिएट्स अंडरलाइन करेंगे, मीन्स ओवरसीज़, यानी जो मुल्क से बाहर रह रहे हैं लोग, उनको कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि
एक तो कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करना इंपोर्ट करना ये भी एक चीज़ है, और एक साथ में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी दूसरे मुल्क रह रहे हैं और वो अपने होम में अपने लोगों को या अपने कंट्री में जो वो पैसे सेंड करते हैं, उससे भी क्या होता है, हमारे मुल्क की जो है वो ये भी एक कहला सकता है कि दिस इज़ द अनदर सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ कंट्री। ठीक है, बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो सऊदी अरब में है, गल्फ़ स्टेट में है। गल्फ़ स्टेट में लाइक दुबई हो गया, कतर, बहरीन वगैरह हो गए, इन स्टेट्स को कहा जाता है। वेयर वेजेस आर मच हायर देन दे आर एट होम। इन 2001 दीज एक्सपेट्रिएट्स सेंट होम अबाउट 2 बिलियन, यानी कि वो एक अंदाजे के मुताबिक बता रहे हैं कि 2001 में उन्होंने जो अपनी जो जो उन्होंने जो भी अर्न किया, उसके बाद उन्होंने जितना हिस्सा उन्होंने अपने होम में अपने फैमिलीज़ को भेजा, वो कितना एक अंदाजे के मुताबिक बता रहे हैं कि वो 2 बिलियन था। ठीक है, $2 बिलियन था। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, इंटरनेशनल ट्रेड। आई विल explain you this heading on my next video. Okay, thank you.